वो घड़ी आ पहुंची है जिसका हम सबको इंतज़ार था फॉर द लास्ट 1 मंथ, द फाइनल ऑफ द फीफा 2026 वर्ल्ड कप बिटवीन अर्जेंटीना एंड स्पेन। आज के शो में हम बात करेंगे कि ये दोनों टीमें इस फाइनल में कैसे पहुंची, इनकी जर्नी कैसी रही, किसको हराया, कौन सा मैच मुश्किल था इनके लिए, कौन सा मैच आसान था, मेसी की परफॉर्मेंस कैसी रही, स्पेन के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, और उसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा पैनल मौजूद है। मैं आपसे उनका तारुफ कराता हूँ। शाहाना वली फ्रॉम चित्राल, वेलकम शाहाना। अमरीन नुसरत फ्रॉम गिलगित, वेलकम अमरीन। एंड मोहम्मद बिलाल फ्रॉम नमीबिया, प्रोफेशनल कोच, प्रोफेशनल प्लेयर, नेशनल टीम में खेल चुके हैं नमीबिया के की। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का शो। बिलाल, आपसे अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। अर्जेंटीना जो है वो 3 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 1978, 1986 एंड 2022। 1978 में दे वर ऑल्सो द होस्ट्स। स्पेन की टीम रिसेंटली वर्ल्ड कप जीती है 2010 में, जबकि इसके अलावा अर्जेंटीना को ये एजाज़ हासिल है कि अर्जेंटीना 6 दफ़ा फाइनल में पहुंच चुकी है। पहली दफ़ा 1930 में, लास्ट टाइम 2022 में। सो इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट टीम, जबकि स्पेन का ये दूसरा फाइनल है 2010 के बाद। क्या कहते हैं, मार्का किसके नाम होगा? Amazing. This is the game we all have been waiting for, and it's going to be a wonderful and exciting game. Kudos to all the countries that participate in World Cup, and kudos to Argentina. They have come a long way. They have battled a lot of matches which you don't even expect them to win the matches, but they come victoriously. And what a comeback against Egypt. They were 2-0 down. Nobody expected. Even myself, I was watching this goal. When they scored that goal, the celebration that came with that goal was amazing, because I'm an African. I have to support an African team. But Messi, being Messi who he is, share is share. He come back and destroy the Egypt team. So credit to him. Once again, I have to chip on some certain issues in this before we get into this conversation. Argentina, Messi have carried Argentina just like Maradona did. मैं भी बिल्कुल यही बात करने लगा था, और हम इस पे आएंगे, मेसी एंड मैराडोना, और मेसी वर्सेस मैराडोना। He took over from Maradona, and when you look at them, they are almost the same type of people, the same foot, left-footed players. They were almost the same height. They were amazing. They are like magicians in the field. But right now, Argentina is in the finals. But there is something I want to say here. There is a player from Spain. His name is Yamal. Lamine Yamal. When he was born, his mother is from Africa and his father is from Morocco. They would just travel to Spain searching for greener pasture. Along the line, they met each other and they have this child. And when they had this child, Lamine mother made some lottery and she won that. And led her to Catalonia in Barcelona. And Messi was the player. Then Messi was 20 years old when he met Yamal. Yamal was a baby. Yes. He carried him in his hand. He even watched when they were bathing him. And after that, I think Messi blessed him. This is what I feel. And give him one of most of the magic which Allah Ta'ala have blessed him with, and transferred a little bit of power to him. Today, when you watch, if you compare these two players, they're almost identical. I think a new king is about to born. But let's see what this night holds. व्यूअर्स, मोहम्मद बिलाल ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाया है कि व्हेन यमाल वाज बॉर्न, तो उसकी मदर उन्हें बार्सिलोना ले आई फॉर ग्रीनर पेस्चर्स, एक बेहतर जगह, बेहतर तलाश में रोज़गार की, फुटबॉल करियर। उस वक्त तो नहीं पता था कि फुटबॉल प्लेयर बनेगा, और उस वक्त यमाल द बेबी की मेसी द 20-year-old से मुलाकात हुई, और ये एक यादगार लम्हा है। कौन सोच सकता होगा कि 20 साल बाद मेसी और यमाल का वर्ल्ड कप फुटबॉल
दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे स्पोर्ट्स के मुकाबला हो रहा होगा। जमाल को जिस तरह आपने कहा कि कहते हैं कि शायद वो अगला मेसी साबित होगा। सो ये वर्ल्ड कप इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि प्रोबेबली मेसी का शायद आखिरी वर्ल्ड कप हो, दूसरे रोनाल्डो का भी शायद आखिरी वर्ल्ड कप हो, प्लस यमाल की एक एंट्री इनटू द वर्ल्ड एरिना, प्लस मेसी और मैराडोना के दरमियान सिमिलैरिटीज और कंपैरिजंस। तो ये क्वेश्चन मैं करता हूँ शाहाना से कि शाहाना, मेसी या मैराडोना? मैं पहले ये बोलूँगी कि 10 नंबर मैराडोना का भी था और मेसी का क्या भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 10 नंबर फिर अगले किसको मिलता है, क्योंकि 10 नंबर जिसको भी मिला है वो मैजिशियन हुआ है, निकला है। तो अगला देखते हैं कि कौन अच्छा बनता है, लेकिन मैं पहले मैराडोना को मैं सपोर्ट करूंगी क्योंकि वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। यही सवाल अमरीन, मैराडोना या मेसी? मैं ये कहूँगी कि जब से मैं फुटबॉल फील्ड में आई हूँ तो मैंने मेसी को देखा है, मैराडोना को नहीं देखा। तो मैं उससे फॉलो करूँगी, उससे देखूँगी एंड आई विश कि वो इस दफ़ा भी अच्छा खेले। मेसी व्यूअर्स, मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्होंने मैराडोना को भी खेलते देखा और मेसी को भी खेलते देखा। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ, हम वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेसी और मैराडोना के बगैर अर्जेंटीना के बारे में बात नहीं हो सकती, वर्ल्ड कप के बारे में बात नहीं हो सकती। सो इन दोनों के दरमियान बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। मेसी ने 1982 का वर्ल्ड कप खेला, फिर 86 में मेसी ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया एज कैप्टन, एज प्लेयर। उनका मशहूर तरीन 2 उनके गोल थे इंग्लैंड के खिलाफ, एक जिसको हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है जी, और दूसरा जो गोल था उसे कहते हैं शायद दुनिया में इससे खूबसूरत गोल नहीं हुआ, जो हाफ लाइन से वो बॉल लेके चले, आधी इंग्लैंड की टीम को उन्होंने डॉज की और गोल किया। फिर 86 में वो वर्ल्ड कप जो बताया, 90 में अर्जेंटीना की टीम को फाइनल में लेके गए जहां वो वेस्ट जर्मनी से हारी 1-0। इसी तरह मेसी जो हैं उनके बारे में कहा जाता था कि उनका मुकाबला मैराडोना के वो उस वक्त तक करीब नहीं पहुंच सकते जब तक वो वर्ल्ड कप ना जीते। तो मेसी ने भी फाइनली 2022 कतर में वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद अब 2026 में दोबारा अर्जेंटीना फाइनल में है। और अगर इस दफ़ा अर्जेंटीना स्पेन को हरा देता है, कुछ ही घंटों बाद ये मैच हो रहा है, सो फिर मेसी वर्ल्ड कप जीतने वाले अर्जेंटीना के ट्वाइस कैप्टन बन जाएंगे, जबकि मैराडोना वंस होगा। तो ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं फाइनल की। स्पेन एक दफ़ा जीता है 2010 में और अब उनका दूसरा फाइनल है। सो आप इस मैच को कैसे देते हैं टेक्निकली, अगर हम इस मैच का एनालिसिस करें? From my own point of view, Spain have come a long way. If you watch when Spain win the World Cup, nobody expect them that they will go up to that extent to become a world champion. I think the whole thing is trying to repeat itself again. That is why I'm backing on Spain to go and finish the job. But if there is any mistake, Spain will pay heavily because Messi is Messi. He's a magician. He's a player that he can't predict what he's going to, bring into the game. He's a player that is so dangerous, so harmful. You don't know how to mark him. You don't know how to hold him. But I think Spain have got a whole bunch of young, talented players that is hungry. They were trying to make a name for themselves. For instance, look at this young guy that we're talking about, Yamal. Amazing player, a talented player. A player that Messi himself welcomed into Barcelona before he left Barcelona team. He watched when the first bath he gave to him and everything, he carried him. And I believe he transferred most of his power to this boy. To me, with the way things are going, I think a new king is about to born. Spain happens to go and make it happen and beat Argentina. I think Yamal will become a very great player in the future. But Messi is Messi. We will never write him off.
a lion is always a lion. Let's see what happens. Keeping an eye on these two players and see what is going. But if Messi happens to become a champion, lift up this World Cup tonight, I think Messi is going to be the greatest player Yes. of all time. He will supersede what Maradona have accomplished. For instance, Maradona bring down England team in 1986 World Cup. 1986, 2026, Messi bring down England England again. again. Watch the date and watch the way he moves. So, and after that, they go ahead and win the World Cup. So, still, something is going to happen. I'm looking forward for that. व्यूअर्स बिलाल का कहना है कि उनके ख्याल में स्पेन को एक एज है क्योंकि स्पेन की टीम में बहुत इंडिविजुअल ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं, लेकिन अर्जेंटीना को आप इसलिए रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह वो कहते हैं कि शेर होता है। सो मेसी को आपने वर्ल्ड कप में देखा है, खड़े रहते हैं, चलते रहते हैं और अचानक एक गोल्डन मोमेंट आता है। जिस तरह अमरीन सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने उन्हें बड़ा अच्छा जो है एक रोक के रखा रहा, फिर इंग्लैंड ने गोल किया, मेसी ने अपनी पोजीशन चेंज की, राइट पे गए और दोनों गोल उन्होंने करवाए, असिस्ट किए नहीं। तो इंग्लैंड एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये खुद कोशिश करेंगे और मेसी एक साइड पे चले गए और उन्होंने कहा कि मैं गोल बनाता हूँ। जिस तरह 78 का वर्ल्ड कप जब अर्जेंटीना जीता था तो अर्जेंटीना के भी कई प्लेयर्स ने गोल बनवाए थे, बल्कि 86 में अगर आपको याद हो मैराडोना ने कैंपस से गोल करवाए थे। इसी तरह जॉर्ज कैंपस से जब मैराडोना को मार्क किया तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं नहीं करता, कोई और कर लेगा। बिल्कुल, एक्सपीरियंस मैटर अ लॉट। अभी देखिए, अगर एक प्लेयर को खेलने नहीं दे रहे तो वो खिलाएगा ज़रूर, और मेसी ब्रिलियंट प्लेयर है हमारे पास। अगर वो खुद नहीं खेल रहा था तो उसने असिस्ट किया अपनी टीम को और उसने जिताया। सो दिस इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल कि हम ये नहीं कह सकते कि अर्जेंटीना जीतेगी या स्पेन के पास बहुत पोटेंशियल एनर्जी है, यंग प्लेयर आए हुए हैं उनके पास, यमाल है उनके पास। सो देखा जाए ना तो मिड दोनों का स्ट्रॉन्ग है, दोनों टीम्स बहुत अच्छी है, कीपर उनके पास बहुत अच्छे, बहुत अर्जेंटीना के पास इस चीज़ का मार्जिन है, उसके पास बहुत अच्छा कीपर है, और स्पेन के पास मिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसमें हाँ, जो इंग्लैंड में ही खेलते हैं। Martinez, he was playing in Aston Villa. Yes. One of the best keeper in the world. बिल्कुल। A brilliant keeper. Yes. He's got a very big heart. A very talented player. Yeah. You see, the one thing about Martinez, which I so much love, is this: he will make you as a player to become confused and make you forget about your game and take advantage of what you have. जिस तरह उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में पेनल्टीज रोकी थी। Yes, of course, definitely. तो अर्जेंटीना के पास अच्छी कीपर है और स्पेन के पास अच्छी मिडफील्डर है, मिडफील्ड और डिफेंस और गेम है। डिफेंस भी है। Definitely, they've got one of the best defense जी। because you can check the goals which they concede in this World Cup. You can check it बिल्कुल, yourself. मैं वही आपको It's one of the best things that Yeah. keep it strong at the मैं back. बता रहा हूँ, Yeah. स्पेन के वर्ल्ड कप में 7 मैचेस में दे हैव ओनली कंसीडर्ड 1 गोल। सिर्फ one goal. बेल्जियम के खिलाफ 2-1 Yes. और क्वार्टर फाइनल में Yeah. अर्जेंटीना और 13 गोल किए उन्होंने, Of course. 13 गोल्स। 13 गोल्स। अर्जेंटीना ने 19 गोल्स किए और उनके खिलाफ 7 हुए। जी। सो अर्जेंटीना इज अ मोर अटैक माइंडेड टीम। Attacking my Yeah. team. स्पेन की जो एक हम आप से ओपिनियन लेते हैं आप सालों से, जी, sir. स्पेन का जो एक सर्टन पिछले कोई 20 ईयर से स्टाइल बन गया है कि बिल्कुल स्लो पोजेशन बेस्ड के आराम से। लेकिन अगर हम Position. देखें सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने भी 88% पोजेशन के साथ बिल्कुल स्पेन वाली गेम ही खेली। Listen, sir. If you go to what happened in semi-finals, it was suicide बाय इंग्लैंड। by England because England have got the materials, they have got the players, they have got every talented player in every position in football. But the coach was stupid enough to ask them to go and defend one simple goal. यस, When you have these potentials in your team, दूसरे गोल की ट्राई करनी you चाहिए। can do that यस, against a very big team like Argentina. They will come and attacking you. And remember, even if you have free kick
at the age of 18-yard box. Yes, It's just like a penalty to Messi. exactly. Messi can convert it to the goal. The coach really do one of the worst coaching stuff that I have ever seen before in the history of football. I give him this blame. The coach has to be blamed. He was awesome. He was a very good coach. He's been doing well throughout the tournament. I really believe that he will go far, which he did. But what he did against Argentina was evil. It was suicide. I never see him as a very good coach. I mean, no coach can do that with this bunch of players you have. If I am the coach of England with all this talent, I'll ask my team, go for it. When they score, you score them. Hmm. So the coach is, I don't know what happened to him. स्पेन का जो पहला मैच था ग्रुप मैचेस में, वन ऑफ देयर मैचेस केप वर्दे के अगेंस्ट इट वाज 0-0, और किसी भी लम्हे टिल स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को बड़ा कन्विंसिंगली 2-0 हराया है। स्पेन की टीम कहीं भी फेवरेट्स में कंसीडर नहीं हो रही। व्हाट चेंज्ड? Listen, you see, happen in games sometimes. A team will start so slow. When the game progresses, they will start, playing a little bit of the aggressive game and getting the rhythms and getting into the game. So this is exactly what happened. But credit to them, amazing. If you check the history of World Cup, I have never seen a team that conceded only one goal to the finals. Yeah. They are defending experience and what they have done with their defensive system and everything. Kasamse both amazing. Kasamse, he was amazing, brilliant. I mean, credit to the coach, credit to the boys, what they are doing. I wish they would go ahead and still, keep it on and get the job done, because what I'm seeing, I think they will get the job done. Over to my colleagues here. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अभी तक वर्ल्ड कप में इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक मैच हुआ है 1966 में, ग्रुप मैच विच अर्जेंटीना वन 2-1। सो इन दोनों की वर्ल्ड कप में मीटिंग्स ही ना होने के बराबर है, और एक टीम यूरोप को रिप्रेजेंट कर रही है, एक टीम लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये भी एक बड़ा मुकाबला है, लैटिन अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, यूरोप, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। सो कैसे देखते हो आप कि ये जो पूरा वर्ल्ड कप है, स्पेशली इसमें जो 48 टीम्स थी, उस 48 टीम्स को, चूंकि वर्ल्ड कप इख्तिताम को पहुंच रहे, तो थोड़ा सा हम वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को भी डिस्कस कर लें। आपको क्या लगा कि 32 टीम फॉर्मेट से 48 टीम फॉर्मेट बेहतर है? या क्योंकि ज़्यादा टीम्स होंगे तो ज़्यादा मैचेस होंगे, हम्म। ज़्यादा पता चलेगा, प्लेयर्स को ज़्यादा चांस मिलेंगे, तो ज़्यादा मैचेस अच्छे होते हैं। और अर्जेंटीना और स्पेन की मैं बात करूं तो अर्जेंटीना एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ वो आ रहा है, और मैं स्पेन की बात करूं तो वो कॉन्फिडेंट और न्यू प्लेयर्स है, न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच वो हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं करता हूँ अमरीन से कि अमरीन, जो यमाल हैं, उन्होंने बहुत उनका चर्चा था वर्ल्ड कप से पहले भी, वर्ल्ड कप में भी, लेकिन अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने गोल सिर्फ एक किया है, लेकिन उनका इम्पैक्ट स्पेन टीम में और कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो वो अपने लिए नहीं खेल रहे बिल्कुल, ही इज प्लेइंग फॉर द टीम। अगर हम पूरे स्पेन की टीम के बारे में बात करें ना, दे आर वन टीम, वो एक टीम बन के खेल रहे हैं, तो हर प्लेयर अपना इनपुट दे रहा है। ज़रूरी ये नहीं कि आप कितने गोल कर रहे, ज़रूरी ये है कि आप अपनी टीम को कहाँ लेके जा रहे। हमने ऐसे भी प्लेयर्स देखे जिन्होंने 6-6 गोल भी किए थे इवेंट में, लेकिन बिल्कुल हॉलैंड, इन्होंने 6-6 गोल, 7 गोल किए, इन्होंने गोल भी किए थे, लेकिन वो अपनी टीम को उस लेवल तक लेके नहीं गए जहाँ तक यमाल लेके आया है अपनी टीम को, क्योंकि यूनिटी जो है ना, वो हर चीज़ वो अच्छा रिजल्ट देती है, सो मैटर करती है। Let me chip some few things in what she said. Listen, Yamal is only 18 years old. Yes. Go back to the history of Messi. When Messi was 18 years old, the first World Cup he participated, he scored only one single goal. Check it out. Yamal, this World Cup, he have scored only one single goal. Messi and Yamal, I think they are the same type of players that comes once in a lifetime. To me, this is what I feel. Because when you check
what is going on between Yamal and Messi, you will see that it's not coincidence. It's just something that Allah Ta'ala have blessed to be there. When Messi was 18 years old, when he was playing in Barcelona, his jersey number is number 19. Right now, that was 18 years old. Right now, Yamal is 18 years old. His jersey number is number 19. Yeah. When the first World Cup Messi played and participated, he scored only 1 goal. And the same thing is happening to Yamal. And who welcomed Yamal to Barcelona is Messi when he was 20 years old. Something is going on. A new king is about to born. This is my belief. And let's see what is happening, what is going to happen this night. But if Messi go ahead and get it done, he's going to be the best player ever in the history of football. Because he got to World Cup, he was pursued. Ronaldo have never made it to semi-final of World Cup before. अच्छा, आपने एक statement दी greatest player या best player. So we can't forget Pele. Pele is a great player, but if Messi can be able to pull it this night, everybody will be under him. Take it from me. फिर पहले भी और Maradona To भी. me, I'm a Okay. coach. I know what it takes to be a coach. I have got almost 18 years experience in this field. If Messi lifts World Cup this night, everybody will shut up. I'm telling you the truth. Both Ronaldo, both who he is, the comparison will die off. They cannot compare it again because a hero is a hero. Okay, thank you so much for being on the show, Bilal, Mohammad Bilal. Thank you for having me. प्रोफेशनल कोच, प्रोफेशनल प्लेयर, नामीबिया की नेशनल टीम में खेल चुके हैं. वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर ऑन आवर शो. Thank you for having me. 2 budding football players, Ambreen. अमरीन एंड शहाना. बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में आपसे प्री मैच. सो व्यूअर्स, आपने व्यूज सुने हमारे बड़े ही एक एक्सपीरियंस्ड और 2 बडिंग एंड टैलेंटेड पार्टिसिपेंट्स के. वर्ल्ड कप फाइनल चंद घंटे दूर है. अर्जेंटीना या स्पेन, कौन जीतेगा? स्पेन के पास मौका है दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का, अर्जेंटीना के पास चौथा वर्ल्ड कप जीतने का. डिबेट चलती रहेगी कि कौन बड़ा प्लेयर है, मेसी, मैराडोना, अर्जेंटीना की अगर हम बात करें, वरना तो पहले भी इस डिबेट में शामिल हैं, शायद इस वक्त सबसे आगे हैं. प्लस ये वर्ल्ड कप इस लिहाज से बड़ा ही यादगार रहेगा कि ये प्रोबेबली आखिरी वर्ल्ड कप होगा लायनल मेसी का और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप जो 4 साल बाद होगा, दोनों की एज 40s में होगी. सो रात को लेट मैच होना है पाकिस्तानी टाइम से, देखिएगा ज़रूर. And thank you for watching this special show on World Cup, FIFA World Cup 2026, only on Youth Pakistan.